السلام علیکم جی، اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. آج کل عوام کے مسائل ہیں کیا؟ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بے روزگاری، سطح غربت سے نیچے کروڑوں کی آبادی رہ رہی ہے، سرکولر ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آئی پی پی ایس کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ، بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں لاکھوں کی تعداد میں ملک بھر میں. یہ بہت سارے مسائل جو ہیں. ان سے پہلے جب الیکشنز ہوئے تھے، جنرل الیکشنز اسی سال فروری میں، تو عوام کو بڑی امیدیں تھیں کہ فوری طور پہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے یا پھر ان میں کمی آئے گی، ہمارے مسائل میں مہنگائی میں کمی آئے گی. اور ابھی تک اپیرنٹلی ایسا لگ نہیں رہا، دکھائی نہیں دے رہا. اور ان الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اصولی طور پہ 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے، 90 دن کے لیے، لیکن تقریباً وہ 3 ماہ سے دگنا وقت گزار کے گیا. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت، جس میں تمام پارٹیز ایک ساتھ تھیں، اور انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بہت مہنگائی ہو چکی ہے، عام آدمی کا جینا جو ہے محال ہو چکا ہے اور مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے. مہنگائی کا خاتمہ نہیں کر پا رہی پاکستان تحریک انصاف، ملک نہیں چلا پا رہی. تو کیئر ٹیکر حکومت کا کیا رول رہا، کیئر ٹیکر حکومت کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں صحافت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو فار کمنگ. شکریہ بھٹی صاحب. اچھا سر، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے. جب الیکشنز کا انعقاد ہوا تو آپ نے نیشنل ٹی وی پہ قوم کو مبارکباد دی تھی. تو قوم کو مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیٹسفائڈ تھے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، اور اس کے بعد پھر ایون عرفان صدیقی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، ان سب کی طرف سے احتجاج اور ریزرویشن سامنے آئیں، اور ان سب کو سیٹسفیکشن نہیں تھی الیکشنز کے پروسیس سے. تو آپ کا ابھی بھی موقف یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا اور قوم مبارکباد کی مستحق تھی الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں، آپ نے جو نام لیے ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑائی نہیں. مثال کے طور پر اعتزاز احسن، انہوں نے تو اس الیکشن میں کوئی حصہ ہی نہیں لیا. تو وہ تو ایک طرح سے پارٹی نہیں ہے شکایت کرنے والی. جہاں تک باقی لوگوں کی شکایتوں کا تعلق ہے تو ہر الیکشن میں کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں. ہر الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، اور انہی بے ضابطگیوں کی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ جی ٹریبیونلز بنائے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن میں شکایت ہوتی ہے. تو جیسے 2018 کے حوالے سے شکایت تھی، تو کچھ شکایت اس الیکشن کے حوالے سے بھی ہیں. آپ نے ذکر کیا مولانا کا، تو مولانا کی جماعت جو ہے وہ زیادہ تر ان کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے. خیبر پختونخوا میں اگر دھاندلی ہوئی اور مولانا کی سیٹیں گئیں تو وہاں پر جو فائدہ ہوا وہ تو پی ٹی آئی کو ہوا. اب پی ٹی آئی اور مولانا آپس میں طے کر لیں کہ کس نے دھاندلی کی. پھر آپ نون لیگ سے اگر بات کریں تو ان کے بڑے بڑے جو کھلاڑی تھے، جو بہت سارے بڑے پہلوان تھے، وہ الیکشن ہار گئے. گجرانوالہ سے خرم دستگیر ہار گئے، لاہور سے خواجہ سعد رفیق ہار گئے، فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ ہار گئے. مطلب ایک کافی لمبی فہرست ہے. اپسیٹس ہوئے جی. تو اگر وہ ہار گئے اور یہ بڑے کئی الیکشنز لڑنے والے لوگ ہیں اور جیتتے آئے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تو ان کی جگہ تو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے. تو یہ ایک شکایت جو ہے وہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ نشستوں پہ بے قاعدگی ہوئی ہو، تو اسی کام کے لیے الیکشن ٹریبیونلز ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جائیں. آپ یاد کریں کہ 2018 کے الیکشن میں ایک صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بنے. اگر آپ یاد کریں کہ جس صاحب نے قومی اسمبلی کی تحلیل کا ایک غیر آئینی فرمان پڑھ کر سنایا، قاسم سوری صاحب،
وہ اسٹے آرڈر پہ انہوں نے 5 سال نکال لیے. تو یہ ہمارے نظام کے اندر مسائل اچھا ہیں. سولنگی صاحب، اس میں آپ لیکن سمجھتے ہیں کہ اس کا خودی صاحب مطلب یہ کا ہرگز قصور نہیں ہے. یا پھر عدالتی نظام کے بارے میں بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے. آپ کو یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں جس میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی شامل ہے، تو الیکشن ایکٹ کے اندر وہ تمام ترامیم اور تبدیلیاں ہونی چاہیے تھیں. بہت سارے لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ نگران جو سیٹ اپ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ وہ لوگ شکایت کر رہے ہیں جن لوگوں نے یہ نگران سیٹ اپ آئین کے اندر ڈالا، آرٹیکل 224 جو ہے وہ میں نے تو اس میں ترمیم نہیں کی تھی، نہ نگران حکومت نے کی تھی، نہ وہ کسی ٹرک پہ بیٹھ کے یا 111 بریگیڈ کے ذریعے یہ نگران حکومت قائم کی. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ جی یہ 3 مہینے ہونی تھی الیکشن میں اسی طرف آنا چاہ رہا نگران تھا. حکومت، لیکن یہ اگر آپ جی 6 اجازت مہینے دیں تو میں اس میں گزار سوال ایڈ لیے. کر دوں کہ آپ کی ذاتی رائے کر کیا ہے دیجیے. کہ 90 روز سے زائد جو حکومت رہی تھی اس کا سٹیٹس کیا تھا آئینی طور پہ آپ کی رائے کے مطابق؟ دیکھیں آئین کے اندر ایک آرٹیکل موجود ہے 254، وہ پڑھ لیجئے. اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی کام کسی خاص مدت میں ہونا ہو اور وہ کسی وجہ سے نہ ہو سکے اور وہ بعد میں ہو تو وہ اس وجہ سے غیر قانونی نہیں ہو جاتا. یہ آئین کے اندر یہ آرٹیکل کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس لیے ڈالا گیا تھا کہ کبھی ایسی مجبوریاں آئیں گی جس میں آپ وہ کام وقت پر نہیں کر سکیں گے. اب آپ پیچھے آ جائیں کہ جو کابینہ 17 اگست 2023 کو جس نے حلف لیا اس میں زیادہ سے زیادہ 90 دن رہنا تھا، لیکن وہ 200 دن چلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پیچھے جو ہے وہ مڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آئین کا آرٹیکل 51 پڑھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس فہرست پہ ہوں گے، لسٹ پہ ہوں گے جو آفیشل سینسس جو آخری ہوگا اس جو سرٹیفائیڈ ہو اس پر ہوں گے. جو آفیشلی پبلش سینسس جو تھا وہ 2023 کا آ چکا تھا کیونکہ کابینہ اس کی منظوری دے گئی تھی. اس سے پہلے جو آئینی ادارہ ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل فار کامن انٹرسٹ، اس نے اس کی منظوری دے دی تھی. تو جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم 2017 کے جو مردم شماری ہے اس پر الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ نیا آفیشل سینسس آ گیا ہے. اور جب نیا آفیشل سینسس آئے تو پھر آئینی طور پر نئی حلقہ بندیاں کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور حلقہ بندیوں کا ایک پورا نظام ہوتا ہے جس میں وقت لگتا ہے، پھر اعتراضات ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ جی ہم یہ اس ٹائم پر نہیں کرا سکتے، اور سپریم کورٹ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ 90 دن کے اندر اس کو مکمل کر لیں. سر پوائنٹ ٹیکن. تو آئینی اور قانونی طور پر جو الیکشنز 8 فروری کو ہوئے اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی والے بہت شور مچاتے ہیں جی یہ غیر آئینی تھا، تو وہ جاتے نا سپریم کورٹ میں کہ یہ 90 دن سے زیادہ جو ہے یہ غیر آئینی ہے، اور سپریم کورٹ قرار دیتی تو وہ حکومت ختم ہو جاتی اسی وقت. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی جمہوری نظام میں کیا عدالت کا رول ہونا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو بتانا چاہیے عدالت کو کہ جی آپ الیکشنز کرا لیں، اور ایسی صورتحال تذبذب کا شکار پوری قوم ہو اور ہر شخص یہ سوال کر رہا ہو ایک دوسرے سے کہ کیا الیکشنز ہو رہے ہیں یا الیکشنز نہیں ہو رہے، الیکشنز ہو رہے ہیں تو کب ہو رہے ہیں؟ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے میں ناکام ہو گئیں اور ان کو سپریم کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ مہربانی کریں آپ الیکشنز کرا لیں؟ ہماری سیاسی جماعتوں کا جو حال ہے فہیم وہ آپ خود ہی دیکھ لیں. جو باقی جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت ہے، ان تمام جماعتوں پر بہت سارے اعتراضات اور الزامات لگتے ہیں کہ جی آپ جماعتوں کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، یہ موروثی جماعتیں ہیں، ایک خاندان کا
कब्ज़ा है इन जमातों पर, ये सारी तनकीदें होती हैं। आप एग्री करते हैं? और उसी हवाले से जब पीटीआई सामने आई तो इसी हवाले से आई कि जी ये ज़रा वखरी किस्म की जमात है, इसके अंदर जो है वो जमहूरियत है और ये ज़रा बिल्कुल नए तर्ज की जमात है। आप ज़रा इसकी तारीख़ देख लें, जो पहले इलेक्शंस हुए पीटीआई में 2013 में, वो उस पर एतराज़ हुआ और उनके अपनी जो बना हुआ जो ट्रिब्यूनल था जिसके सरबराह जस्टिस वजीहुद्दीन थे, उनकी रिपोर्ट पढ़ लें, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो इलेक्शन जो है उसके अंदर धांधली हुई, कैसे वोट ख़रीदे गए, कैसे जो है वो कुछ लोग जो है उनको उन अहम ओहदों पर बिठाया गया। तो 1/2 से ज़्यादा तनाज़ा तो सिर्फ पीटीआई के अंदर चल रहा है। फिर बाद में तस्नीम नूरानी साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, उन्होंने भी कहा कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। फिर तीसरी दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि करा लें, तो वो तक वो नहीं करा सके। तो ये हमारे सियासी जो जमातें हैं उनकी जो कमज़ोरी है वो तो है कि पॉइंट टेकन उनके अंदर। जी ठीक है जी, अब सर आगे चलते हैं। अच्छा, आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि और बीइंग अ जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वैसे साफ़ी आपकी बर्ड आई व्यू होती है, लेकिन जब आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के सामने आई होंगी। ये जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो बाबू हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मामलात पे, सियासतदान जो हैं बेबस इनके सामने दिखाई देते हैं। केयर टेकर सेटअप ऑब्वियसली जनरल इलेक्शंस के बाद कुछ और मामलात होते हैं, केयर सेटअप पे आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आपने बज़ाहिर क्या एक्सपीरियंस किया और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको देख के ऑब्जर्व करके आप चौंक गए? मेरे ख्याल में मैं इससे तो इख्तलाफ नहीं करता कि जी हमारा जो सिविल सर्विस है उसके अंदर बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, मैं इससे तो इख्तलाफ नहीं करता। जैसा कि लेकिन ये कहना कि जी वज़रा जो है वो बेबस होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, अगर वज़ीर को ये ख़ुद पता नहीं है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस क्या कहते हैं, अगर उसको पता नहीं है कि उसकी वजारत है क्या, न उसके बारे में उसकी कोई जानकारी है, कोई महारत नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या करना है? फिर वो इल्ज़ामात इस तरह के लगाएंगे। और जहाँ तक माजी में भी जो करप्शन की जो दास्तानें निकली हैं, तो उसमें भी आपको वज़ीर और सेक्रेटरी वो दोनों ही आपको लगेगा कि वो ज़िम्मेदार हैं। ये नहीं हो सकता कि सेक्रेटरी जो है वो कोई करप्शन कर ले और वज़ीर को पता ना चले। या तो वो बिल्कुल ही बुद्धू है, बिल्कुल भी उसको पता नहीं है, वो ऐसे ही जो है वो पकड़ कर किसी ने उसको बिठाया है। यानी कि आपकी बात से तो मुझे तासुर मिल रहा है वो ये कि जो सियासतदान है वो अपनी नाअहली बचाने के लिए मलबा डाल देते हैं ब्यूरोक्रेसी पे, ऐसा ही है? मैं बड़ी हद तक आपके इस बयान से इत्तेफाक करता हूँ कि ये कोई बिल्कुल भी जवाज़ नहीं है कि जी ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है और वज़ीर जो है वो अंगूठा लगाने के लिए बैठा है। देखें, कोई भी जो समरी जब बनती है तो उसके नीचे लिखा होता है कि दिस हैज़ बीन सीन एंड अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर, और उस पर साइन होते हैं। तो ये नहीं होता कि जी वो सेक्रेटरी जो है, ये ठीक है कि जी वो उनको 20, 25, 30 साल भी हो जाते हैं उस काम में, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन पर नज़र रखें, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बग़ैर जो है वो कोई काम हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि एक सवाल के जवाब में सोलंकी साहब आपने ये कहा था कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपने नून और पीपल्स पार्टी का जिक्र किया है, उसमें नेपोटिज़म है, तो आप भी इन इल्ज़ामात से एग्री करते हैं? देखें, मैं यही कहूँगा कि हमारा जो सियासी निज़ाम है उसमें जमातों के अंदर जितनी जमहूरियत होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। और सिर्फ ये पार्टी के फ़ैसला साजी के हवाले से नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि जो पार्लिमानी बोर्ड बनते हैं जिसमें लोगों को टिकट दिए जाते हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के वगैरह, उसमें भी जो फ़ैसला साजी है वो जो पार्टी के सरबराह और उनकी जो किचन कैबिनेट है वही करती है। जो पार्टी के जो अरकान हैं उनका अमल दखल न होने के बराबर है।
आप अगर अमेरिका जाएं और दूसरे मुल्कों में जाएं तो बहुत से मुल्कों के अंदर जो पार्टी के मेंबर हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपकी इलेक्शन कमीशन है उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं कि ये पार्टी के अरकान हैं, और जब इलेक्शंस होते हैं तो उनके अंदर वो बाकायदा उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आप फ़र्ज़ करें कि रावलपिंडी से आपने कौमी असम्बली की नशिस्त किसी को टिकट देना है, तो क्या बेहतर ना होगा कि रावलपिंडी के जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनका कन्वेंशन हो, और जिसने जो उम्मीदवार लड़ने का जो ख्वाहिशमंद है वो अपना नाम सामने लाए, और पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो अक्सरियत से फैसला करें कि भी फलां साहब जो है उसको होना चाहिए, और फिर पार्टी उसको सपोर्ट करे, जैसा बजाय सर मुहज़्ज़ब ममालिक में कि होता है। पार्टी के सरबराह जो है और उनके ख़ानदान फैसला करें। तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जमहूरियत है। तो सोलंकी साहब, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे लिए डेमोक्रेसी का निज़ाम कैसे नाफिज करेंगे इस मुल्क में? मेरे ख्याल में आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। अगर पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो पार्टी के जो अरकान हैं उनके साथ क़यादत की जो एक जुड़त होनी चाहिए वो नहीं होगी, और उनकी आवाम के साथ नहीं होगी। तो हमारी जो जमहूरियत की जो कमज़ोरी है उसकी एक अहम वजह ये भी है। सोलंकी साहब, 300 अरब रुपए की गंदम पाकिस्तान में आई और उसका चर्चा मुल्क भर में हुआ। अब आपसे बात करने का मौका मुझे अभी मिला तो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे उस वाले से भी जान लूँ, किसने डिसाइड किया था, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, किसने अप्रूव किया, क्यों लाई गई और बेनिफिशरी कौन थे? लेकिन मैं ब्रेक ले लूँ सोलंकी साहब, ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब ले लूँ अगर आप बुरा ना मनाएं तो। जी नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सोलंकी साहब, ब्रेक में जाने से पहले जो मैंने आपसे गंदम का जिक्र किया, 300 अरब रुपए की गंदम, वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने डिसाइड किया, बेनिफिशरी कौन है, क्यों मंगवाई गई? ये जो फैसले होते हैं ये सारे होते हैं इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में, जिसमें वज़ीर ख़जाना भी होते हैं, जिसमें अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है गंदम वगैरह की तो जो वज़ीर हैं फूड सिक्योरिटी के वो भी होते हैं। जो मुझे जो मालूम है वो ये है कि उस वक्त जो निगरान जो वज़ीर थे मसूद मलिक मेरे ख़्याल में, तो वो अभी उनकी तैनाती नहीं हुई थी। इसका इजाफ़ी चार्ज जो है वो वज़ीर आज़म के पास था, तो वहाँ पर इसका फ़ैसला हुआ था और फिर इसकी अप्रूवल हुई थी। तो बाकी जो काबीना है ना उसके अंदर उस पर कोई बहस हुई है, ना मैं यानी कि समझता हूँ काकर साहब कि के नॉलेज में था। तो सोलंकी साहब, आप नहीं समझते कि इस साल तो पैदावार भी ज़्यादा हुई है, जो जिस एरिया पे काश्त की गई वो रकबा भी ज़्यादा था, पर एकड़ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई और किसान जो है उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। आपने भी देखा होगा, हमने भी जाके प्रोग्राम्स भी किए। आप नहीं समझते कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए? क्योंकि इस सूरत हाल में हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते 1 रुपया भी ज़ाया करें कौम का। देखें, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया था और उन्होंने इस पर कोई तहकीकाती कोई कमेटी भी कायम की थी काबीना की, तो मैं ख़ुद इस इंतज़ार में हूँ कि उसकी रिपोर्ट सामने आए तो पता चले कि उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो अब ये बताइए, लेकिन जो भी ज़िम्मेदार है, हम तो जो किताबों में चीज़ें पढ़ते हैं सोलंकी साहब, आपने वो जी 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 माजरत फरमाइए। मैं ये कह रहा था कि अगर ये बात साबित होती है कि कुछ अशख़ास अफराद उन्होंने इसमें कोई माल बनाया है या कोई गलत काम किया है, तो जो मुल्क के कवानीन हैं उनके तहत उनको सज़ा मिलनी अच्छा, चाहिए। इसमें यह भी ऐड ना कर लिया जाए कि अगर किसी ने माल नहीं भी बनाया लेकिन गलत डिसाइड किया, गलत डिसीजन किया और उस गलत डिसीजन की वजह से इतना नुकसान हुआ। क्योंकि सोलंकी साहब, आपको तो जो किताबों में चीज़ें हम पढ़ते हैं आपने तो वो एक्सपीरियंस की हुई, आपने देखी, आपने कवर की हुई, आपने रिपोर्टिंग की हुई है। तो ये बताइए कि आपको लगता क्या, आपका हंच क्या है बैसियत सहाफ़ी, बैसियत जर्नलिस्ट, जिस तरह से माजी में पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात हुए, सज़ा तो बहुत दूर की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा OSD हो गए कुछ अफसरान, कुछ को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, कुछ अर्से के लिए वो स्क्रीन से हट गए, दोबारा से वापस आ गए। आपको लगता है कि इसका भी कुछ ऐसे ही होगा?
देखें, अभी मुझे ये नहीं मालूम कि उसमें नौकरशाही मुलविस है, वज़रा मुलविस हैं, वज़ीर आज़म मुलविस है, मेरे इल्म में नहीं है। तो मैं बजाय इसके कि क़ियास आराई करूं, बेहतर होगा कि हम सब इसका इंतज़ार करें कि वो रिपोर्ट सामने आए और फिर हम उस पे कुछ बात कर सकें। ठीक है, उससे पहले मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर क़ियास आराई करूं। ठीक है। अच्छा सोलंकी साहब, एक और हमारे मुल्क का बड़ा मसला है जो बज़ाहिर मेरे ख्याल से तो एक बड़ा ही मसला है। 2000 से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस जो हैं इस मुल्क में 73 के बाद से अब तक सामने आ चुके हैं, जारी हो चुके हैं। तो आप समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम में ऑर्डिनेंस की गुंजाइश होनी चाहिए और वो अब वक्त आ चुका है कि ऑर्डिनेंस वाला निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, ये अथॉरिटी भी ख़त्म होनी चाहिए सदर साहब के पास से? देखें, सदर साहब अपने तौर पर कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं करते। ये आपके इल्म में होना चाहिए कि वफाकी हुकूमत भेजती है। जिसके सरबराह वज़ीर आज़म साहब हैं, वो मुतल्लिका जो वजारत है उनके मशवरे पे जो वजारत है पार्लिमानी उमूर की, वो फिर एक समरी बना के वज़ीर आज़म हाउस भेजते हैं और वज़ीर आज़म दस्तखत करके फिर सदर को भेजते हैं, और अभी तक आपके आइन का ये हिस्सा है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस, जी जी जी, ऑर्डिनेंस, ये जो हमारे यहाँ जो रीत बन गई है, रस्म बन गई है कि आपने एक ऑर्डिनेंस लाना है, अगर असेंबली का इजलास चल रहा है तो उसको आप ख़त्म करके और फिर बीच में आप एक कार्रवाई डालते हैं। जी हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई जमहूरी रिवायत है। या तो आप इस आर्टिकल को ख़त्म कर दें या इसके अंदर तरमीम करके इसको इतना मुश्किल बना दें कि वाकई कोई मजबूरी हो तभी कोई ऑर्डिनेंस आए, वरना ना आए तो बेहतर। तो सोलंकी साहब, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको भी मौका मिला, नून लीग को मल्टीपल टाइम्स मिला, पीपल्स पार्टी को मल्टीपल टाइम्स मिला, ये जमहूरियत का नाम तो लेते हैं, नारे तो लगाते हैं, लेकिन जब ये आर्टिकल 89 मौजूद है जो कि इख्तियारात देता है सदर को, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप जमहूरियत को तो पसंद ही नहीं करते। जब आवाम अपने नुमाइंदों को भेजती है पार्लियामान में तो इसलिए भेजती है ना कि वो आइन साजी करें, कानून बनाएं, वहाँ पे बैठ के वो डिस्कशन हो, डिबेट हो, उसके बाद वोटिंग हो। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरी निज़ाम को निगेट कर रही हैं। आपकी इस पर राय क्या है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है अच्छा, कि कभी कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि आपको फौरी तौर पर एक कानून बनाना पड़े और उस वक्त असेंबली सेशन में ना हो, सेनेट और कौमी असम्बली, तो ऐसी सूरतों में इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इसी आर्टिकल को अगर आप पढ़ लें तो उसके अंदर लिखा है कि जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी होता है, ये लाजिम है हुकूमत के लिए कि वो कौमी असम्बली और सेनेट में उसको ले जाए। और इसी आर्टिकल के अंदर लिखा है कि दोनों जो हाउसेज हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, कोई एक हाउस भी अगर इसको कसरत राय से मुस्तरद कर दे तो वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब जिस तो पार्टी की ऐसी हुकूमत है तो वो बात तो नहीं कसरत है। राय तो हो ही नहीं सकती, अपोजिशन पार्टीज तो उनकी कसरत तो होती नहीं है, मेजॉरिटी होती नहीं है। तो फिर ये जो जिम्मेदारी है वो उस हुक्मरान जमात पे या उस हाउस में जिसकी भी अक्सरियत हो। कई बार ऐसा होता है कि हुकूमत जो है वो तो बनती इसलिए है कि कौमी असम्बली में जिसकी अक्सरियत हो, लेकिन कई बार आपने देखा है कि सेनेट के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उनकी अक्सरियत होती है। और कई दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि ऑर्डिनेंस को उन्होंने मुस्तरद भी किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हुक्मरान जमात जो है वो कौमी असम्बली में तो उसको पास करवा दे, लेकिन अगर सेनेट ने उसको मुस्तरद कर दिया तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अमूमी तौर पे आप समझते हैं, इससे एग्री करते हैं कि जो ऑर्डिनेंसेस हैं ये हुकूमत वक्त जो होती है वो अपने फ़ायदों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करती है, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में इस्तेमाल करे। और इसका मतलब ही अथॉरिटेटिव ऑर्डर होता है, ऑर्डिनेंस का अंग्रेजी में मतलब। तो अथॉरिटेटिव ऑर्डर की ज़रूरत तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में पड़ती है, जैसा कि आपने भी कहा। जी, मैं समझता हूँ कि इसको मिसयूज़ किया गया है ऑर्डिनेंस को, और इसका जो इस्तेमाल है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है सोलंकी साहब, आप क्या समझते हैं जमात इस्लामी का जो इस वक्त धरना जारी है, क्या वो अपनी खोई हुई मकबूलियत अवाम में हासिल करना चाह रही है या कोई और मोटिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं?
देखें, जो मसाइल हैं जिसके बुनियाद पे वो पिंडी आए हैं, वो मसाइल तो हकीकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी भी 75-76 सालों से तो है ना मौजूद, तो वो कभी भी एक कोई मकबूल अवामी जमात नहीं रही। उन्होंने बहुत सारे लीडर्स तब्दील करके देखे। किसी ज़माने में काजी हुसैन साहब बने थे, ज़ालिमों काजी आ रहा है, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करके देख लिए हैं। अभी जो हाफिज़ साहब आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको मार्केट में मुतारिफ़ कराने के लिए उनको एक अवामी लीडर के तौर पर लाने की एक कोशिश है जमात इस्लामी की। मैं नहीं समझता कि उसमें उनको कोई बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन कम से कम कुछ दिन के लिए उनका एक शो तो लग गया है पिंडी में। अब आप लोकल रिपोर्टर से बात कर लें पिंडी के, वो आपको बताएंगे कि ये जो मजमा है ये पिंडी का नहीं है, ये बाहर से लाया गया है और शहरों से लाया गया है। ये ठीक है कि उनकी एक तंजीमी एक तजुर्बा है, तो वो लोग ला सकते हैं। तो शो तो उन्होंने बना लिया है और उसकी एक मीडिया कवरेज भी है, तो उसका वो वही फ़ायदा उठाएंगे कि जी एक उनकी महारत हो गई है, जो नई जो प्रोडक्ट मार्केट में आई वो है लॉन्च हो गई है, उसकी कंपनी की जो मशहूरी है, ठीक है, कंपनी की मशहूरी जो है वो हो गई है। ठीक है। अच्छा सोलंकी साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दूसरी जानिब मजहबी जमातें, अब आपको क्या समझ आती है कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जो मजहबी जमातें हैं उनको अवामी पजीराई क्यों नहीं हासिल हो पाई? देखें, लोग जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, अमलियत पसंद हैं। आम लोग जो है उनकी जो ज़रूरियात हैं वो उनको जो चीज़ जहाँ से मिलती है वो वहाँ से लेने जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद नहीं है मजहबी जमातों की गवर्नेंस की जो सलाहियत है उस पर, कि उन्होंने कोई बहुत बड़े माहिरीन मुआशात पैदा किए हों, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स पैदा किए हों, लोकल गवर्नमेंट के माहिरीन पैदा किए हों। मासवाए चंद अफराद के उनकी अवाम के अंदर जो लोगों की जो डे टू डे जो ज़रूरियात हैं रोज़मर्रा की, उसमें वो एतमाद नहीं है लोगों को। इसी वजह से आपने देखा है कि इन जमातों ने जितने भी हमारे पास इंतखाबात हुए हैं उसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है, बशमूल जमात इस्लामी के। ठीक है सोलंकी साहब, ब्रेक का वक्त हो चुका है दोबारा से। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सोलंकी साहब से जानने की कोशिश करेंगे वो क्या समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब की सियासत का ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। वेलकम बैक जी। सोलंकी साहब, अच्छा फजलुर रहमान साहब के पास स्ट्रीट पावर तो है, उनके पास सीटें कम हों या ज़्यादा हों वो तो एक तरफ, और खैर फ़िलहाल तो कम ही है, तो आप क्या समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब की सियासत की आपको क्या समझ आ रही है? वो किस तरफ हैं? वो पीटीआई के साथ हैं, नहीं हैं? वो 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हो जाएंगे? अगर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान साहब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे? और अगर ऐसा हो गया तो हुकूमत के लिए बहुत टफ टाइम नहीं हो जाएगा सियासी तौर पर? मुझे इसके इम्कानात नज़र नहीं आते अच्छा, कि मौलाना साहब और पीटीआई इकट्ठे कोई एहतजाजी तहरीक चलाए। एक तो ये है कि उनके आपस में जो तज़ादात हैं मफादात के वो बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना की जमात का असर ज़्यादातर उन्हीं इलाक़ों में था और है जहाँ पर आज पीटीआई है। मौलाना की जमात को अगर किसी ने रिप्लेस किया है तो वो पीटीआई है, खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर। तो इस वजह से ये रिवायती तौर पर एक दूसरे के हरीफ हैं। अभी भी जो वो कहते हैं कि जी धांधली हुई है मेरे साथ, तो उस धांधली का जो फ़ायदा है वो पीटीआई को मिला है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मौलाना ने सहाफ़ियों को बुलाया और कहा कि पीटीआई राज़ी हो गई है असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के लिए, और उसके बाद फ़ौरन आपने देखा कि पीटीआई की तरफ से तरदीदें शुरू हो गई। तो
اس کے امکانات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مولانا ناراض ضرور ہیں، لیکن ان کی جو ناراضگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے وہ تو مولانا تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب یہ 2024 کے الیکشن ہوئے تو نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی خاص سیٹیں نہیں ملی، بلکہ جو موجودہ جو حکمران اتحاد ہے ان کے ساتھ بھی کوئی ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ رہی صحیح کثر یہ کہ جی اور کچھ جو آئینی عہدے تھے، مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے گورنرشپ کی یا بلوچستان کی، وہ بھی ان کو نہیں ملے، تو وہ ایک طرح سے لاس میں رہے، اور کسی قسم کی جو بارگیننگ تھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ، اس میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ٹھیک ہے، آپ نے تو پیپلز پارٹی کا سولنگی صاحب ایک طرح سے دکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الائنس کے اختتام پہ پاکستان پیپلز پارٹی از گوئنگ ٹو گین پولیٹیکل اس کو پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی، جو کرنا چاہ رہی ہے وہ مل جائے گی، عوامی پذیرائی مل جائے گی، اور کیا نون لیگ کو اس کا نقصان جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، اور سارا جو ملبہ ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ گرے گا جب یہ حکومت اپنا ٹائم مکمل کر لے گی؟ تو دیکھیں، جب تک پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہوتی تب تک حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کا، اگر اچھی کارکردگی ہے تو اس کا فائدہ بھی مسلم لیگ نون کو ہوگا، اور اگر بری کارکردگی ہے تب بھی اس کا نقصان انہی کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ البتہ درست ہے کہ ان کو کچھ اہم آئینی عہدے مل گئے ہیں، ملک کے صدر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، گورنر خیبر پختونخوا، تو یہ ان کو فائدہ ضرور ہوا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا روایتی طور پر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں ان کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی گڑھ ہے، ان کا مضبوط قلعہ ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پنجاب ہے، تو ان کے جو بیٹل گراؤنڈز ہیں وہ مختلف ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سندھ اور پنجاب کا ذکر کیا، تو سیاسی منظر نامے میں آنے والے وقت میں کیا اب ہم تین صوبوں کو سیگریگیٹ کر سکتے ہیں کہ کے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو کے رہ گیا ہے، پنجاب جو ہے نون کے پاس ہی رہے گا، اور جو سندھ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہے گا، اور بلوچستان اس بارے میں تو میں ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، فی الحال تو یہ صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ایک مضبوط پوزیشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا چلتے ہیں۔ خان صاحب مجبور تو نہیں کرتے کہ ان کو کسی مرحلے پر وہ کوئی اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جائیں جو کہ پہلے ایک غلطی کر چکے ہیں، تو فی الحال تو وہاں پر ان کی پوزیشن ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں جو نئی قیادت ہے، مریم نواز شریف صاحبہ، وہ کوشش تو کافی کر رہی ہیں، لیکن یہ تو عوام بتائیں گے جب الیکشنز ہوں گے اگلے، تو عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سولنگی صاحب، ایک ہمارے آنریبل جسٹس ہیں، انہوں نے امریکہ میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں مارشل لاء کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ڈکٹیٹر حملہ آور ہوئے عدالتیں بند تھیں، اگر کھلی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ کون مائی کلال آئین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان بیانات سے، ان معاملات سے عوام کو غرض نہیں ہے؟ کیا یہ اچھا ہو جائے کہ جب ہمارے ججز ایسے بیان دیں کہ کون مائی کا لال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، کون مائی کا لال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، کون مائی کا لال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے، کون مائی کا لال ہے کوئی کسی کے پیسے کھا جائے؟ تو جب اس طرح کے بیانات آئیں گے اور اس طرح کی کنوکشن سامنے آئے گی ایسے ایشوز پہ، تو تب نہیں سمجھتے کہ عوام کے لیے زیادہ بھلائی ہے؟ وہ غالب کہہ کے گئے تھے نا، ان کی شعر کی آخری جو سطر ہے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ جو فرما گئے کہ جی وہ عدالتیں کھلی ہوتی تو مارشل لاء نہ لگتا، تو مولوی تمیز الدین کیس پہ چلے جائیں، جسٹس منیر کی جو فیصلہ تھا فیڈرل کورٹ کا، جس میں انہوں نے دستور ساز اسمبلی کی جو تحلیل تھی اس کو قانونی قرار دیا۔ پھر آپ آگے چلے جائیں، جو
सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब ख़ान का मार्शल लॉ, उसको इन्हीं अदालतों ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। फिर PCO और आगे जजेस, चले जाएं, जी जी, उस और आगे चले जाएं, मतलब अयूब ख़ान के तो 11 साल इसी तरह से गुज़र गए। ज़ियाउल हक के जो 11 साल थे उसको किसने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। और आगे चले जाएं, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो कू था, उसको न सिर्फ ये कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया, जी हाँ, बल्कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को ये अख्तियार भी दिया कि आप आइन के अंदर तरमीम भी कर सकते हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि जज साहब ने क्या कहा है और उसका क्या मकसद है, लेकिन अदालतें खुली हों या बंद हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो अदलिया की हमारी तारीख़ है वो इतनी कोई रोशन नहीं है। तो आप समझते हैं यही तो वजह है कि माशाल्लाह से हम 142 ममालिक की लिस्ट में से, फहरिस्त में से 130वें नंबर पे हमारा अदालती निज़ाम आता है, 130th जी, आउट ऑफ 142। आप खुद देख लेना, आप खुद देख लें कौमी असम्बली में इस वक्त जो पेंडिंग केसेस हैं अवाम के, उनकी कितनी तादाद है, और जो सियासी मुकदमे हैं उनकी कितनी है, और कौन से मुकदमात अवाम के जल्दी लगते हैं या जो सियासी मुकदमात हैं। इसी वजह से अगर आपको याद हो, जो मीसाक जमहूरियत हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और नवाज शरीफ का 2006 में, उसमें एक नुक्ता यह भी था कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक जो आम जो मुकदमात हैं उनके लिए अलग, और जो आइनी जो मसाइल हैं उसके लिए एक आइनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है बनाएंगे, जिसमें वफाक की तमाम इकाइयों की बराबर नुमाइंदगी होगी। लेकिन वो मीसाक जमहूरियत की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अमल नहीं हुआ, उनमें से एक ये भी था। तो मेरे ख़्याल में ये इस मौके पर ये बात करना ज़रूरी है कि ये आपको करना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स, जो पेचीदा जो आइनी मसाइल है, उसके लिए एक अलग एक आइनी कोर्ट जो है वो आप तश्कील दें। ठीक है, IPPs की तरफ आ जाते हैं। आजकल बड़ा शोर गुल है इसके हवाले से, और IPPs को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन खैर वो तो एक अलग मौक़िफ़ है, क्योंकि IPPs खुद से तो ज़बरदस्ती उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया नहीं था, करने वालों ने की थी। अब नवाज शरीफ साहब ने 97 में पावर हाउसेस लगाए, बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में लगे, मुशर्रफ दौर में 22 IPPs लगे मुशर्रफ साहब ने, सईद यूसुफ गिलानी साहब के दौर में भी लगे IPPs, फिर 2013 से 18 तक जो है नवाज शरीफ साहब ने भी ढेर IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आप समझते हैं कि इससे पहले, इसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी से और टेक्नोक्रेट से, को फाउंडर भी थे पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मुबशिर हसन साहब, इन्होंने बेनज़ीर साहिबों को उस दौर में मना किया था, और उन्होंने उनका ये बयान था, उन्होंने कहा था कि ये इक़दाम आने वाली नस्लों के गले में तौक के मुतरादिफ होगा। तो समटाइम्स टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और जो लोग समझदार होते हैं इस हवाले से समझदारी वाली बातें कर जाते हैं। तो आप समझते हैं कि सियासतदानों को कभी कभी उनकी भी सुन लेनी चाहिए, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते? अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर इस वक्त आप देखें कि हमारी जो मईशत है उसका भट्टा बिठाने में ये जो तवानाई का जो शोबा है उसका एक अहम किरदार है। और भी मसाइल है, सिर्फ ये नहीं है, टैक्स एवेजन भी है, बहुत सारे रियायात जो हैं वो एक्सपोर्टर्स ले रहे हैं जबकि वो एक्सपोर्ट कर नहीं रहे होते। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये IPPs जो है वो एक जिसको वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना अकीलीज़ हील, वो है पाकिस्तान की मईशत का। और जो जब तक आप अफोर्डेबल तवानाई नहीं फ़राहम करेंगे, ना आपकी ज़राअत चलेगी, ना आपकी सनत चलेगी। जो आम जो सार्फिन है घरेलू, उनका तो बुरा हाल है ही। तो ये मेरे ख़्याल में पिछले काफ़ी दिनों से ये मसला अब बहुत ऊपर आया है, मीडिया में भी इस पर बात हो रही है, और ये अच्छी बात है कि इस पर गुफ्तगू हो, क्योंकि वही जमात और वही लोग जो है वो कामयाब होंगे जो कि इस बहरान को हल करने के लिए कोई बुनियादी मनसूबाबंदी करेंगे। क्योंकि ये जो कैपेसिटी पेमेंट का जो कल्चर है, मुझे पता है कि फौरी तौर पर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि
जो गैर मुल्की जो आपके मुआहदे हैं जुर्माना अदा करना जिसमें पड़ेगा। सावरन गारंटीज़ हैं, उसमें आप जो है वो बिजली के बल्ब की तरह से ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस तरफ कोई ना कोई मंसूबा बनाना पड़ेगा और आपको जो काबिल तजदीद तवानाई जो रिन्यूएबल है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, वही उसका हल है। ठीक है। वरना आपका जो मुल्क है वो उसमें न सनत लगेगी, न ज़राअत चलेगी, न घरों में रोशनी होगी। ठीक है। अच्छा सोलंकी साहब, आप ये एग्री करते हैं कि मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त वो है इकोनॉमिकल क्राइसिस, ऐसा ही है? दुरुस्त। अब ये बताइए कि आपकी राय क्या है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस के क्रंच से हुकूमत बाहर नहीं निकल पाती तो आपको दिखाई दे रहा है कि हुकूमत अपना वक्त, अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो बता सके कि कोई हुकूमत जो है वो कब तक चलेगी, ये मेरे इल्म में नहीं है। इश्यूज को लेकिन पाकिस्तान की जो देखते हुए देखिए पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें जो केमिस्ट्री है किसी हुकूमत के चलने की, उसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ ही जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जिस तरीके से PTI ने इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को और हुकूमत सबको एक तरह से टारगेट किया हुआ है, उसमें मासवाए इसके कि कोई बहुत बड़ा कोई इनकलाब आ जाए और करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाएं और हुकूमत चलाना नामुमकिन हो जाए, वरना मुझे जो है इस हुकूमत को गिराने के लिए कोई और कोई सूरत जो कि होता नजर दिखाई नहीं दे नहीं रहा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात।